So thank you very much for having me on this platform to share some of the knowledge on the technical side. So before moving to the studies parameter, I just wanted to give you some of the basic things which one should always keep in mind before taking any trade for either it's for intraday trade or be it positional trade or for investment trade. So what one needs to keep always in mind, because in technical what generally we do, there is only two things change in the technical. दो ही चीजें रोज बदलती ड्यूरिंग द डे आप देखते हैं, एक तो प्राइस और एक वॉल्यूम। ये दो ही चीज जो है वो बेसिक पैरामीटर है किसी भी चीज को टेक्निकल पे एनालाइज करने के लिए। बिकॉज इन दोनों चीजों के कारण ही मार्केट में प्राइजेस, दोनों ही चीजों के कारण किसी स्टॉक में चेंजेस होते हैं। उस चेंज को हम एनालाइज करते हैं डे ऑन डे बेसिस पे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन डे ऑन डे बेसिस। या तो उसका प्राइस चेंज होगा, ये बढ़ेगा या गिरेगा, या उसका वॉल्यूम ऊपर होगा या नीचे होगा। So, based on price and volume, we try to analyze the price pattern, we try to analyze the formation, we try to analyze the stock with the help of some mechanical indicators. Some of the formations like head and shoulder, triangular formation, channel formation, up sloping, down sloping, trend line, breakout, breakdown. So many parameters we try to analyze. But this is what why these all patterns are taking place, because of price and volumes are changing every minute, every second. So these two things needs to be understand in the market. तो किसी को भी मार्केट में अगर टेक्निकल बेसिस पे ट्रेडिंग करना है, या जब भी उसे कोई स्टॉक को एनालाइज करना है, तो ये दो चीजों पे आपका होल्ड होना बहुत जरूरी है। बाकी सारे जितने भी इंडिकेटर्स पैरामीटर आप अप्लाई करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, सो वो सेकेंडरी होते हैं। पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर ऑफ द स्टॉक। और प्राइस बिहेवियर अगर आपको समझ में आ गया एक बार, और उसका वॉल्यूम के साथ कोरिलेशन समझ में आ गया, तो देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि कहाँ पे स्टॉक का बॉटम बनने वाला है, कहाँ स्टॉक का टॉप बनने वाला है, कहाँ कंसोलिडेशन में जाने वाला है स्टॉक। सो दिस ऑल कम्स थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टॉक price uh, price and volume behavior. So you need to have close eye on the daily basis whatever stocks you are tracking. Like for example, you must be tracking 10-20 stock on daily basis, because it's very difficult to track all 1,000 stock on the daily basis. So whatever stocks you have in your trading portfolio, 10-20 stocks, you need to understand about the price behavior of the stock on uh, whatever time frame you are analyzing, which will give you the clear indication whether it's in buy zone, whether it's in sell zone. So now we'll move to the basic rules for the uh, trading. You should always trade in the stocks which have quality. Okay. Maybe patterns are there in some penny stocks also, some mid cap stock also, maybe, but fundamentals, if you trade in Nifty 500 stock or BSE 500 stock, so it automatically filters your, quality of the stock. It always assure you that you are betting on the stocks which are having good fundamental, because NSE 500 का अगर वो stock है, तो it automatically covers the मैनेजमेंट का क्वालिटी, वहां पे ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाता है, वहां पे आपका कंपनी का फंडामेंटल्स ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, बिकॉज स्टॉक इज इन कैटेगरी ऑफ एनएससी 500। तो एनएससी 500 का जो ग्रुप है स्पाइडर में, आप यू कैन फिल्टर आउट, यू कैन ट्रैक ऑल द स्टॉक्स विच आर देयर इन द 500, बिकॉज वी आर applying here technical study, and technical study में you need to have stocks which have mass participation rather than controlled stock। आप लोग मार्केट में देखते होंगे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल्ड होते हैं। कुछ ट्रेडर्स या कुछ हैंड्स होते हैं जो उस स्टॉक को प्राइस को कंट्रोल करते हैं, और अकॉर्डिंग टू देम स्टॉक्स कीप्स ऑन मूविंग आइदर अप और डाउन, वो अपने हिसाब से मूव करते हैं। अदरवाइज वो किसी एक दिन चढ़ जाते हैं, बाकी फिर वो आप देखते होंगे कि वो महीने भर तक, 2 महीने भर तक कभी चलते ही नहीं वो स्टॉक। तो एनएससी 500 के जो स्टॉक होंगे, एवरी डे यू विल सी द पार्टिसिपेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ओन्ड बाय द म्यूचुअल फंड, most of the stocks are owned by the ultra HNI category of client, most of the stocks are owned by PMS,
most of the stocks are owned by the FIIs also. So उसमें day to day basis पे you will see the participation, volume action, and it's a mass participation. So whenever you want to apply any technical study, it works only whenever there is a mass participation. अगर आप समझिए कि मैं कोई स्टॉक को कंट्रोल कर रहा हूँ और पूरा स्टॉक पे मेरा ही अकेले का कंट्रोल है, तो यू वोंट बी एबल टू रीड माय ट्रेडिंग पैटर्न बाय सीइंग अ चार्ट, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स ड्रिवन बाय सिंगल पर्सन और 2 or 3 persons आर ड्राइविंग अ स्टॉक, सो दे विल change any day any time chart pattern, or they may give you freak breakout, freak breakdown, and then they may trap you. But when there is a mass participation जहाँ पे लाखों लोगों का participation होता है जिस स्टॉक में, it तो टेक्निकल पे देन यू कैन एनालाइज दो स्टॉक्स, बिकॉज किसी एक आदमी के बाय सेल करने से वो स्टॉक ऊपर या नीचे नहीं आया, कहीं ना कहीं एक कंसेंसस बनी है मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स की, तभी वो स्टॉक का एक कंजेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, या तो लोगों को वो स्टॉक अच्छा लगा है तभी उसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है और सभी लोगों ने बाय किया, उसको मास पार्टिसिपेशन आया. Yes, it could be some big buyers always drive the prices, but जहाँ पे mass participation होता है, it's easy to trade on the technical basis. So NSE 500 always gives you a universe where you have mass participation in the stock, और वो आपको ट्रेड करने के लिए you will get always confidence and you will get always टेक्निकल सेटअप वहाँ पे काम करता है. जब भी आप किसी चार्ट पे ब्रेकआउट देखेंगे तो आपको जब भी देखेंगे कि वो सस्टेन होता है, NSE 500 BSE 500 के स्टॉक्स पे जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो आप अपने स्टॉक्स को यू कैन डिवाइड इन टू कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स. फर्स्ट इज हाई बीटा स्टॉक, लो बीटा स्टॉक. व्हाट डज इट मीन? कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत वॉलेटाइल होते हैं नेचर में, मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट भी निफ्टी करेक्ट होता है तो देन दे ऑलवेज करेक्ट विद द निफ्टी, तेजी से 2% 3% 4% का करेक्शन हो जाता है. और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो लो बीटा होते हैं, जनरली दे ट्रेड बाय देयर ओन, दे मूव by their own fundamental, they always move by their own trading behavior, they always perform their own trading behavior. वो मार्केट के साथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, and they always give you low volatility in the market. बाजार 100 पॉइंट निफ्टी गिरेगा तो हो सकता है वो 1% 2% का ही करेक्शन होगा, ज्यादा करेक्शन नहीं होगा. स्टॉक लाइक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, DLF, so many stocks are there which we generally see कि मार्केट में जरा सा भी पैनिक होता है तो ये स्टॉक्स 5 5 10 10% करेक्ट हो जाते हैं. मार्केट तेजी से बढ़ता है, जब बहुत ज्यादा बुलिश मोड में होता है तो ये स्टॉक 5 10% बढ़ भी जाते हैं. सो अगर हमको लो रिस्क पे ट्रेड करना है तो हमें लो बीटा स्टॉक्स पे हमेशा ध्यान देना चाहिए. स्टॉक लाइक पावर ग्रिड, स्टॉक लाइक NTPC, ONGC, ये स्टॉक स्लो स्टडी मूव होते हैं. सो इट ऑलवेज गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ आपका रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, बिकॉज अगर आप लो रिस्क टेकर है तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फोकस मोर ऑन द लो बीटा स्टॉक. if you are high risk tracker then you can have trading portfolio of high beta stock, but वहाँ पे volatility would be always higher. वहाँ पे तेजी से पैसा आएगा भी और तेजी से पैसा जाएगा भी, because if you trade in high beta stocks, so either you can have a balanced kind of portfolio, you can have mixed bag of stocks like high beta low beta stocks, so you can make your trading portfolio based on this बीटा ऑल्सो, कि ताकि बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा. जब भी मार्केट में कभी गैप अप गैप डाउन होगा तो यू विल नॉट गेट मच हिट ऑन योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. सो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से मीनिंग इज व्हाट, जो स्टॉक आप डे टू डे बेसिस पे बाय सेल करते, दैट आई एम कवरिंग यू इन अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. बट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज लाइक इफ यू आर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर, सो दो स्टॉक्स आर डिफरेंट. सो बट ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में डे टू डे बाय सेल जो आप करते हैं, एक दिन दो दिन के हिसाब से जो भी आप पोजीशन लेते हैं, दैट इज योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. देन पोजिशनल पोर्टफोलियो, एंड देन वन इज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. सो तीन कैटेगरी में ब्रॉडली यू कैन डिफाइन योर पोर्टफोलियो, and based on that you can apply the technical study to identify the stock. So ये एक तरीका हो गया आप जिसके कारण से you can define your risk also. It will automatically manage your risk if you bifurcate your stocks in category of high beta low beta, and based on that you can define based on your own, because trading is again subjective. It depends on each and every person,
हर आदमी का रिस्क एपेटाइट होता है, बेस्ड ऑन दैट ही कैन डिसाइड कि मुझे 5,000 कमाने के लिए ट्रेड करना है, मुझे 50,000 कमाने के लिए करना है, या 1 लाख कमाने के लिए करना है, मेरा रिस्क कितना है। एवरीवन नोज देयर ओन रिस्क एपेटाइट। सो इसके लिए कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं हो सकता कि हम बोले कि नहीं आप तो सारे हाई बीटा स्टॉक्स में काम करें या सब लो बीटा में काम करें। नो, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, बिकॉज इट वेरीज विद द रिस्क एपेटाइट ऑफ द पर्सन कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। Last one is you should always try to focus on the sectors which is always in the sectors which is trading in bullish territory, because most of the tendency is to trade in the market is on the to buy करके उसको sell करने की tendency होती है market में। Generally we find traders always try to buy stock lower and then try to sell stock at higher price. So buy and then sell at higher price, this is the major trading activity which we generally see in the traders only. Short is always difficult for most of the traders, because short करने में internal everybody is bull in the market, so they always try to buy and then sell the stock. Short is always difficult for everyone, because if your overall trend for the market is in bullish territory, so everybody try to buy the stocks in the dips only, because डर लगता है कि हम शॉर्ट करेंगे कहीं ट्रैप नहीं हो जाए या मार्केट कहीं बहुत ऊपर नहीं चले जाए। सो मोस्ट ऑफ द traders we generally when we meet, when we talk, generally we see they are in nature they are always in bullish. But yes, if you are index trader, then those who are really in trading in index, so they generally follow both the direction on a daily basis, because they always play in the both the direction, because those who are trading in nifty, so nifty or bank nifty, so they have to trade in the both direction, and then they gradually become a perfect technical trader, because they trades in index. So their bullish uh, tone always बैलेंस, बिकॉज दे ट्रेड इन द निफ्टी। सो जो सिर्फ स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनका नेचर, मोस्ट ऑफ द 80% लोगों का नेचर होता है बुलिश साइड में ट्रेड करने का। लेकिन जो इंडेक्स के ट्रेडर होते हैं वो दोनों साइड में ट्रेड करते हैं। वो मार्केट डायरेक्शन के साथ ऑलवेज दे चेंज देयर पोजीशन एंड दे प्ले इन द बोथ द डायरेक्शन। जब भी निफ्टी टर्न होगा वो दे ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द आइदर डायरेक्शन। सो आपको भी कहीं ना कहीं इंडेक्स को ट्रैक करना चाहिए। दो बहुत से ट्रेडर्स को हम देखते हैं कि दे ओनली ट्रेड इन स्टॉक, दे डोंट ट्रैक इन द निफ्टी। बट निफ्टी को भी ट्रैक करना जरूरी, बिकॉज निफ्टी ऑलवेज गिव्स यू होलिस्टिक व्यू ऑन द मार्केट कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कितना रहेगा, बाइंग इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वेदर वी शुड बी ऑन बाय साइड ऑफ द मार्केट, वेदर वी शुड बी ऑन सेल साइड ऑफ द मार्केट, हमको लाइट पोजीशन रखना है आज मार्केट में या हमको एग्रेसिव ट्रेड करना है। सो दिस ऑल कम्स थ्रू द इंडेक्स डायरेक्शन, बिकॉज अगर इंडेक्स ही आपको दिख रहा है कि इंडेक्स यहाँ से 200-300 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है, तो देन why to remain aggressive on the stock? उस समय you have to be light in the your position, whatever stocks you are holding up, you can sell it and again you can buy it. So अब डिसीजन कैसे लेना? डिसीजन तो बहुत सारे तरीके हैं। You can apply so many parameters on the technical charts, based on that you can take the decision. If you are intraday trader, your time frame should be 3 minute to 15 minute। ये चार्ट आपको यूज करना चाहिए। इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम का you can apply 3 minute, 5 minute, 10 minute, 15 minute, even 30 minute chart also will work for intraday trade. So based on your positioning की for how much time you can hold your position, अगर आप 3 मिनट 5 मिनट चार्ट पे if you are taking a position, then you will get immediate exit in next 10-15 मिनट, बिकॉज वहां पे जो पैटर्न बनेगा वो आपको रिजल्ट अगले 10-15 मिनट में दे देगा। सो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा रिजल्ट आने में उतना टाइम लगेगा, क्योंकि पैटर्न का फॉर्मेशन जो होगा वो लोअर टाइम फ्रेम पे जो बनेगा वो आपको रिजल्ट भी उतनी जल्दी देगा। सो जो बहुत क्विक ट्रेडर होते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, दे ऑलवेज फॉलो 3 मिनट 5 मिनट और 10 मिनट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न, एंड देन दे टेक वेरी क्विक एंट्री एग्जिट इन द मार्केट। सो उसके लिए simple एक moving average you can apply, whatever stocks are trading about 20-day moving average, you can always try to remain on the long side of the trade for the intraday trading on those stocks. Same way vice versa, if stock is trading below 20-day moving average, then you can remain on the bearish side. You can apply pivot level also on the daily basis. Always you should look at the pivot level for the market.
और निफ्टी एज वेल एज फॉर द स्टॉक। जो भी स्टॉक आप बाय कर रहे हैं तो उसका पाइवट लेवल आपको पता होना चाहिए। आप जब भी बाय कर रहे हैं, पाइवट के ऊपर बाय कर रहे हैं या पाइवट के नीचे बाय कर रहे हैं, वो भी आपको क्लियर डायरेक्शन देगा, और देन यू विल हैव ट्रेड इन योर फेवर अगर आप सही जगह उसको बाय कर रहे हैं तो। सो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। हियर टुडे आवर सेशन इज टू मोर फोकस ऑन द option, how to why option is required, and how option trading is beneficial for you, and what kind of parameter you can look at to generate trades in the option। सो बट ये सारी जो चीजें होती है, ये सब चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजन। सो इंट्राडे ट्रेड में आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ऑलवेज होना चाहिए। जब भी आप कोई पोजीशन ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इफ आई एम लूजिंग 1 रुपीज तो 2 रुपीज हैज टू बी गेन। तो वो पैटर्न में जब भी आप इंटर कर रहे हैं किसी भी पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, सो देन यू शुड बी हैविंग दैट मच ऑफ कुशन इन द प्राइस मूवमेंट की, लाइक अगर आप 5 रुपए का लॉस बुक कर सकते हैं तो वहां पे 10 रुपए का एटलीस्ट मूवमेंट शुड कम इन योर फेवर। सो वो ही ट्रेड को आपको इनिशिएट करना चाहिए। इफ यू मिस द ट्रेड तो जरूरी नहीं है कि उसको हम हायर प्राइस पे या लोअर प्राइस पे जाके उसको एग्जीक्यूट करें। जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई उसको छोड़ देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमने देखा है कि व्हेन यू डिसाइडेड टू ट्रेड इन एनी ऑफ द स्टॉक, और वो स्टॉक 5 रुपए 10 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका, उसके बाद आप उस पर ट्रेड करते तो बट अगेन यू फॉल इन ट्रैप, लाइक वो जब भी रिट्रेस होता है तो देन वहां पे आपको टेम्प्ट हो जाते हैं, देन अगेन यू बुक द लॉसेस बिकॉज वो आपके अनफेवर में आता है। रिट्रेसमेंट वो एक नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी स्टॉक में जब भी ब्रेकआउट आता है तो एक रैली करने के बाद वो रिट्रेस जरूर करता है। लेकिन अगर हम वो रैली में ट्रेड करने जाएंगे उसको, या तो आइदर यू हैव टू टेक एंट्री एट द ब्रेकआउट पॉइंट, या अगर आप लेट हो गए और आपने फिर ऊपर रैली होने के बाद उसको लिया तो वो रिट्रेसमेंट में आपको इट विल गिव यू ट्रबल। तो फिर वहां पे आपको डर लगेगा और देन यू विल ट्राई टू एग्जिट एंड यू ऑलवेज ट्राई टू बुक द लॉसेस व्हेन द स्टॉक प्राइसेस गिव्स यू रिट्रेसमेंट आफ्टर अ रैली पोस्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो वो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। Sector is always very important. You should always try to filter out which sectors are performing. Spider-Man, you will get the feature. You have that feature कि you can find out which sector is performing on daily basis. So सुबह सुबह देख लीजिए मॉर्निंग में आधे घंटे 1 घंटे में which sectors are gaining। जिस सेक्टर में आपको दिख रहा है कि हाँ ये सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो इट गिव्स यू वन इंडिकेशन कि यस आज मार्केट का मूड इस पर्टिकुलर सेक्टर में बुलिश साइड का है। और मे बी यू इफ यू आर बियरिश ऑन मार्केट, इफ यू आर कंफर्टेबल इन शॉर्टिंग इन द मार्केट, तो यू कैन फाइंड आउट मॉर्निंग में आधे घंटे 45 मिनट में आप यू कैन फिल्टर आउट कि किस सेक्टर में वीकनेस है। आज कौन से सेक्टर के सारे स्टॉक नेगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं। देन ये टॉप डाउन अप्रोच है। पहले सेक्टर पता कर लिया कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है कौन सा सेक्टर नेगेटिव है, देन यू कैन फिल्टर आउट द स्टॉक्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर कि उस सेक्टर में अगर आपको शॉर्ट करना है तो कौन सा स्टॉक सबसे वीक है। तो जो स्टॉक सबसे वीक है उसमें आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। एंड सेम वे आपको अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड करना है तो जो सेक्टर आप पॉजिटिव है आज, उस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप किस स्टॉक का है। तो इंडिविजुअली सेक्टर को आप फिल्टर आउट करने के बाद देन यू कैन सी ऑल द स्टॉक्स ऑफ दैट सेक्टर थ्रू द सॉफ्टवेयर, एंड बाय दैट यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो उसमें भी आप डेली चार्ट देख लीजिए, उसका 60 मिनट चार्ट देख लीजिए, 30 मिनट चार्ट देख लीजिए, किस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये सब बेसिक पैरामीटर्स आप अप्लाई करके रखिए अपने एक चार्ट पे, टेम्पलेट पे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आज ये सेक्टर अगर बैंकिंग सेक्टर चल रहा है तो इस बैंकिंग सेक्टर में कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर सकता है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सेम वे स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू आर स्विंग ट्रेडर, सो आप जो भी टाइम फ्रेम पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें यू यू हैव टू अप्लाई द पैरामीटर लाइक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज RSI को अप्लाई कर लीजिए। बेस्ड ऑन दैट जब भी आपको स्विंग के पास में हाई लो के पास में जब भी आपको एंट्री एग्जिट मिलती है वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सेम वे पोजिशनल ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू एनालाइज द चार्ट ऑन द डेली चार्ट्स, और डेली चार्ट, वीकली चार्ट, इवन अवरली चार्ट, 4 अवरली चार्ट, ये सारी टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉक को देखना चाहिए। देन मूविंग एवरेजेस में 20 50 100
200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप बुलिश साइड का ट्रेड उसमें हमेशा रख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है इन सारे मूविंग एवरेज के तो वो स्टॉक वीक है, तो फिर उसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है या कोई चांस ही नहीं बनता है, बिकॉज वो वीक जोन में ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल ट्रेड में ऑलवेज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा होगा। 1:5 कैटेगरी का स्टॉक और यू नीड टू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट इन द पोजिशनल कैटेगरी, क्योंकि वहां पे आपका टाइम फ्रेम बड़ा है, वहां पे आपको मूव भी बड़ा मिलेगा स्टॉक में, और यू हैव टू होल्ड द पोजीशन। सो वहां पे कम से कम 1 रुपए खोने के सामने 5 रुपए अगर मिल रहे हैं तो देन यू शुड ट्राई टू इनिशिएट पोजिशनल ट्रेड इन द स्टॉक्स। अभी नाउ वी विल मूव टू द ऑप्शन, व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग इज इम्पोर्टेंट एंड ऑप्शन क्यों, कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको। सो देखिए, ऑप्शन में दो ही तरीके से ट्रेड होता है। पहला तो या तो आप कॉल बाय करें, मतलब या तो कॉल लें, तेजी करना है तो आप कॉल खरीदेंगे, आपको मद्दी करना है तो पुट बाय करेंगे। दो ही तरीके हैं ट्रेड करने के, कॉल एंड पुट। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है या आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करना है। एट द मनी का कॉल ऑप्शन मतलब कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो उसका 100 रुपए का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं, अगर आपको तेजी का मूड है तो। हाँ, उसको बोलेंगे हम एट द मनी। अगर आपको 110 रुपए की स्ट्राइक का आप कॉल बाय कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर वो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है लेकिन 110 का आप कॉल बाय कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉल। अब डिफरेंस क्या है एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में, क्या डिफरेंस होता है मेजरली? तो सिंपल, अगर हम प्राइस से बात करें तो एट द मनी की प्रीमियम हमेशा ज्यादा होगी, बिकॉज वो बिल्कुल वो स्टॉक के अंडरवेल अंडरलाइन के बिल्कुल पास में स्ट्राइक प्राइस है, इसलिए उसकी प्रीमियम ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मोमेंटम भी स्टॉक के प्राइस के साथ ऑलमोस्ट उसका, अगर वो 1 रुपया बढ़ेगा तो वो ऑप्शन भी 60 पैसे 70 पैसे बढ़ेगा बेस्ड ऑन बीटा वैल्यू। सो उसमें अगर आपको एट द मनी में काम करना है, आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए, डेल्टा। सो उसका जो डेल्टा है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका डेल्टा क्या है। डेल्टा आप ग्रीक्स आपको स्पाइडर पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन जब ओपन करते हैं तो यू कैन फाइंड द ग्रीक्स थ्रू दैट, यू कैन फाइंड आउट द डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू क्या है? कोई भी स्टॉक अगर 1 रुपया बढ़ रहा है तो वो स्टॉक का प्राइस कितना, ऑप्शन कितना बढ़ेगा, वो अगर आपको पता करना है तो आपको वो उसकी डेल्टा वैल्यू पता होना चाहिए। डेल्टा से आपको यू विल कम टू नो कि वो कितना मोमेंटम देगा। अगर निफ्टी जैसे आप खरीद रहे हैं 14,700 पे, और 14,700 पे आप निफ्टी खरीद रहे हैं और उसका ऑप्शन खरीद रहे हैं 14,700 का, उसका डेल्टा समझिए 0.60 का है, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो आपका ऑप्शन 60 रुपए बढ़ेगा। तो आपको स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना है, तो भी आपको पता रहेगा कि अगर मेरी निफ्टी में मैं 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ तो मेरा ऑप्शन में मुझे कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप वो स्ट्राइक का ऑप्शन खरीद रहे कोई भी स्ट्राइक का, तो वो ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा, सो वो पता आपको लग जाएगा इसकी वैल्यू के थ्रू, कि अगर ड्यूरिंग द डे निफ्टी इतने पॉइंट मूव होगी तो मेरा ऑप्शन कितने पॉइंट मूव होगा। तो आई लास्ट माय कलीग राहिल को भी बताऊंगा कि राहिल विल शो यू हाउ टू सी दिस वैल्यू थ्रू द सॉफ्टवेयर इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सो अब ऑप्शन में क्या करते हैं हम जनरली, हम ऑप्शन में जब ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जब हमें लो रिस्क पे ट्रेड करना है या हमें मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, तो जनरली हम ऑप्शन में जाके ट्रेड करते हैं। अदरवाइज तो अगर आपको रिस्क लेनी तो आप यू कैन डायरेक्टली प्ले इन द कैश सेगमेंट में, उसको बाय कर लेंगे या आप फ्यूचर में बाय कर लेंगे। बट आपको अगर लिमिटेड रिस्क में काम करना है तो यू ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द अदर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग। सो अब इसमें हमको करना क्या है, जब भी हम कोई स्टॉक पे बुलिश या बेरिश है तो हमें वो स्टॉक में ऑप्शन की एक्टिविटी को ट्रैक करना होती है। अब ऑप्शन की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए देयर आर सो मेनी ऑप्शन, देयर आर सो मेनी वेज जिसके थ्रू यू विल फाइंड आउट कि मुझे कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए इसके लिए, जहां पे मुझे अपने अपने डिजायर्ड जो मैंने सोचा है उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट मिल जाए। ओके। सो अब आपको ये देखना है कि किस स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। फॉर एग्जांपल आज का ही एग्जांपल ले, ग्लेनमार्क फार्मा। सो ग्लेनमार्क फार्मा जब आज जिस तरीके से मूव हो रहा था, तो ग्लेनमार्क फार्मा में अगर हम चाहें कि हमें ग्लेनमार्क फार्मा का ट्रेंड, अगर हम इसका डेली सेटअप देखें तो इसमें क्लियर कट एक डेली से चार्ट पे ब्रेकआउट था। आप देख सकते हैं इसमें कि प्रीवियस स्विंग हाई का इसने ब्रेकआउट, आज की जो कैंडल बनी इसने प्रीवियस स्विंग हाई जो थे इसके उसका ब्रेकआउट दिया है। अगर हम ये टाइम फ्रेम देखें इसमें, तो इसमें जो ब्रेकआउट मिल रहा है
तो इसमें क्लियर कट आज डेली चार्ट पे ब्रेकआउट था। अब इस तरीके के स्टॉक को हमको ट्रेड करना होता है ऑप्शन में, बिकॉज यहाँ पे जब आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है, एक कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, तब वो स्टॉक्स में आप जनरली सी कि वहां पे मोमेंटम काफी फास्ट होते हैं। तो अब जब हमें ये स्टॉक में ब्रेकआउट दिखा था, तो हमें इसमें अब कौन सी स्ट्राइक का ऑप्शन बाय करना है। सो उसको देखने के लिए हमें देखना होगा सबसे पहले कि किस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। सो आपको अगर जब पता लग गया कि ये स्टॉक ने 540 550 की रेंज का ब्रेकआउट दिया है, तो अब यहाँ पे हमें एट द मनी लेना है, आउट ऑफ द मनी लेना है, इसमें ब्रेकआउट का अगला टारगेट क्या हो सकता है ये आपको डिफाइन करते आना चाहिए। पहले तो ब्रेकआउट देख के आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट है और क्या इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम एक्शन क्या है, बाकी पैरामीटर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड क्या सजेस्ट कर रहा है, आरएसआई क्या सजेस्ट कर रही है। उसके अकॉर्डिंगली अगर ये हाई इंटेंसिटी का ब्रेकआउट है, तो इसका मोमेंटम कहाँ तक लेके जा सकता है इस स्टॉक को। क्योंकि अगर आप प्योरली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आज इंट्राडे में ये स्टॉक में कहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो जैसे अभी राहिल ने ड्रॉ किया है 536 540 की रेंज में इसका ब्रेकआउट हुआ था, जो कल भी एक अटेम्प्ट लिया था, लेकिन एक रिट्रेसमेंट आया। आज फाइनल उसका फाइनल कंफर्मेशन का ब्रेकआउट वापस से स्टॉक ने दिया। आज ओपनिंग के बाद आप देखेंगे तो स्टॉक ने 540 के नीचे वापस 535 540 के नीचे ये स्टॉक आया नहीं, और देन आपने देखा कि इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे थ्रू आउट द डे एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्राइक का ऑप्शन हमें बाय करना है। तो आप इसका ऑप्शन चेन डेटा खोलेंगे, ऑप्शन चेन डेटा में आप देखेंगे कि एक दिन पहले कौन सी स्ट्राइक में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई। क्योंकि देखिए, ब्रेकआउट हुआ है, जो भी स्मार्ट प्लेयर है उन्होंने पोजीशन एक दिन पहले बनाई होगी, या आज मॉर्निंग में कौन सी स्ट्राइक में मेजर एक्टिविटी यहाँ पे किस तरीके से आज इसमें एक्टिविटी हो रही है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको वो पता लग जाएगा कि आज आपको कौन से स्ट्राइक में ट्रेड करना है, और उसके बेसिस पे आपको वो ऑप्शन में जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिस 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 कॉल में या अनवाइंडिंग हो रही है या जिस कॉल में ज्यादा लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं, वो कॉल ऑप्शन बाय करनी। बिकॉज आप ये पूरा ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए थ्योरी थोड़ी चेंज होती है, बट ये इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको इंट्राडे बेसिस पे कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू डिफाइन योर स्ट्राइक 540 550 whatever strike is available, you have to buy at the money का call option, and then you can define your stop loss also based on the breakout level। जैसे आप टेक्निकल चार्ट देख के स्ट्राइक पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, या तो आप चार्ट देख के उस ऑप्शन का स्टॉप लॉस डिफाइन कर लें, या फिर आप इस अंडरलाइंग वैल्यू जो है, जो उसका कैश मार्केट का प्राइस है या उसका फ्यूचर का प्राइस है, उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ग्लेनमार्क का 550 का कॉल ऑप्शन है। यू कैन सी हियर आज का जो लो था करीब 15 रुपीज के आसपास था। 15 रुपीज से ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 40 रुपए होके आया। सो एक दिन में 98% का गेन क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे। सो इस तरीके के ट्रेड को अगर आपको पकड़ना है, तो पहले आपको स्टॉक को डेली चार्ट पे जब भी ब्रेकआउट मिलता है, इमीडिएट वो स्टॉक को वहां से आइडेंटिफाई करें। फिर उसमें नेक्स्ट जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करें। और जब तक ये ट्रेड आपके फेवर में, जब तक ये ब्रेकआउट इंटेक्ट है, जब तक आप उस पोजीशन में रह सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में वैल्यू प्रीमियम जो होती है बहुत जल्दी श्रिंक होती है। तो आपने जब ट्रेड ब्रेकआउट पे लिया है, तो जब तक ब्रेकआउट इंटेक्ट है यू कैन रिमेन इन द पोजीशन ऑफ ऑप्शन। लेकिन जैसे ब्रेकआउट फिजल आउट होगा, आपको अपनी पोजीशन को रिवर्स भी करना है, आपको उस ऑप्शन से निकलना भी है। आप इसमें देखेंगे तो कैंडलस्टिक चार्ट पे भी आपको देखेंगे कि एक हैमर ओपनिंग के बाद इसमें एक हैमर बना, वहां पे एक फ्रेश एंट्री का इंडिकेशन मिला। कल का जो मेजर, कल पिछले दिन का जो आप इसका मूवमेंट देखेंगे, जहां पे एक बेस बनाया था, मल्टीपल बेस फॉर्मेशन जो हुआ था जिस प्राइस पॉइंट पे, वो प्राइस पॉइंट को इसने ओपनिंग के बाद से होल्ड कर लिया इस ऑप्शन ने। सो इसके नीचे वाला, इसके नीचे जो बेस बना था, यस, ये जो बेस बना था, ये प्राइस आप देखेंगे ये करीब वही 15-16 रुपए के आसपास है। आप देखिए ओपनिंग के बाद से ये प्राइस 16-17 रुपए के नीचे गया नहीं है ऑप्शन का। सो मेजर एक्यूमुलेशन जो था और मेजर जो बाइंग इंटरेस्ट बना था इस ऑप्शन का, वो 16-17 रुपए पे था। तो जो कल स्मार्ट बायर थे, जिन्होंने कल एंटिसिपेट किया था, एक बार तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ था लेकिन फिजल आउट हुआ था, लेकिन वो अपनी पोजीशन होल्ड करके गए थे। और वो 16-17 रुपए उनका कॉस्टिंग था
और वहां से आप देखिए आज उन लोगों को, सारे लोगों को जिन्होंने लिया था, उन्होंने इस ऑप्शन का मूव या अंडरलाइन का मूव आप देखेंगे 40-45 रुपीज तक गया वहां पे मैक्सिमम। आज पोजीशन बुक भी हुआ होगा। आई एम नॉट एबल टू सी हियर ओपन इंटरेस्ट डेटा, बट राहिल विल बी एबल टू गाइड यू कि ओपन इंटरेस्ट वहां पे जाके कम हुआ नहीं हुआ, वहां पे प्रॉफिट बुक हुआ या नहीं हुआ। बट प्राइस मूवमेंट क्लियरली दिखा रहा था कि 16-17 रुपए के ऊपर ये ऑप्शन क्लियरली बाय इंडिकेशन दे रहा था। चार्ट के थ्रू भी आप देख के एंट्री ले सकते थे। स्टॉक के इंडिविजुअल 536 का प्राइस ब्रेकआउट हुआ तो उसके बेसिस पे भी आप एंट्री ले सकते थे। तो दो दो डबल कंफर्मेशन आपको ऑप्शन में मिला था, जिसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि मुझे ये स्टॉक में बाय करना। जैसा कि पहली स्लाइड में वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में मोमेंटम हो रहा है। अगर आपने शुरू के आधे घंटे में स्पाइडर में जो ऑप्शन है सेक्टर का, जहां पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम था, आपको क्लियरली दिख गया होगा कि आज यहाँ पे फार्मा सेक्टर में क्लियर कट बाइंग दिख रही थी। मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स वाज शोइंग बाइंग इंटरेस्ट। तो आपको क्लियर कट बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा था फार्मा में। सो उसी में से सबसे स्ट्रेंथ वाला स्टॉक कौन सा था? सिप्ला था, ग्लेनमार्क था। तो हमने इसमें अभी ग्लेनमार्क का एक एग्जांपल यहाँ पे कोट किया कि किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, जो आपका अंडरलाइन का ब्रेकआउट है उसके बेसिस पे, प्लस ऑप्शन के चार्ट के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट कि आपको ये ऑप्शन बाय करना है। ये इंट्राडे के लिए क्राइटेरिया था। वैसे ही पोजिशनल का क्राइटेरिया अलग होता है। पोजिशनल में जब आप कोई स्टॉक पे लंबी तेजी आपको दिख रही है, ये स्टॉक एक यहाँ से 10% 15% का मूव शॉर्ट टर्म में दे सकता है, पोजिशनल बेसिस पे दे सकता है, तो वहां पे आपको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। वहां पे एट द मनी कॉल ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। जनरली यू कैन ट्रेड इन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि वहां पे आपकी प्रीमियम भी कम रहेगी, रिस्क भी कम रहेगी, और अगर आपके फेवर में ट्रेड आएगा तो देन यू विल हैव, आपका जो प्रॉफिट रिटर्न रहेगा वो भी काफी अच्छा रहेगा। सो वो पोजिशनल ट्रेड करना है जब भी आपको, तो आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले सकते हैं जहां तक कि आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल टारगेट ये स्टॉक का हो सकता है। सो नाउ वी विल अगेन मूव टू द ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज भी होती है, पर हियर वी विल डिस्कस मोर ऑन द प्लेन वेनिला ट्रेड्स। स्ट्रेटेजी के लिए वी विल हैव सेपरेट सेशन। सो स्ट्रेटेजी कब डिफाइन करना चाहिए आपको, सिंगल सिंगल लेग का ट्रेड कब करना चाहिए, डबल लेग का ट्रेड करना चाहिए कब, बुल कॉल स्प्रेड कब करना चाहिए, पुट बियर पुट स्प्रेड कब करना है, या कॉन्डर कब करना है, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से यू कैन डिफाइन योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि मुझे ग्लेनमार्क में एंट्री करना है और मुझे यहाँ से 580 से ऊपर के इसका टारगेट नहीं लग रहा है, और मुझे रिस्क भी ज्यादा नहीं लेनी है, मैं 540 पे एंट्री ले रहा हूँ, 550 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, तो मुझे अपने रिस्क को कम करना है और मुझे पर लगता है कि 580 के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं 580 का कॉल ऑप्शन बेच भी सकता हूँ साइमल्टेनियसली। तो मैंने 550 का कॉल ऑप्शन बाय किया, साथ में 580 का कॉल ऑप्शन बेच भी दिया, तो इंट्राडे रिस्क भी मेरी कम हो गई, और मैंने ट्रेड में, तेजी के ट्रेड में अपनी पोजीशन भी बना ली। हाँ, ये जरूर होगा कि आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो 580 का कॉल ऑप्शन भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। लेकिन आपकी रिस्क जो डाउनसाइड की, अगर चलो ये ब्रेकआउट फेल हो जाता वापस से, कल जैसे फेल हुआ था आज भी अगर फेल हो जाता, फिजल आउट हो जाता, तो कम से कम आपको अपने ट्रेड से एग्जिट होना है, तो आपका लॉस भी कम होता, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने प्रीमियम राइट कर रखी है। तो आपको उसके सामने अगर आपकी प्रीमियम जो एट द मनी की प्रीमियम जो कम होगी प्राइस के साथ, वैसे ही आपकी 580 की प्रीमियम भी थोड़ी कम होगी, श्रिंक होगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक कुशन देगी जो आपके लॉस को थोड़ा सा मिनिमाइज करेगी। So, वो एक तरीका और होता है। Now I'll ask Rahil to take you through further. He will demonstrate you take the how to filter out through the software. किस तरीके से आपको ऑप्शन फिल्टर आउट करना है, एंड हाउ टू टेक द एंट्री, एंड हाउ टू एनालाइज फर्दर टू टेक द राइट अप्रोप्रिएट डिसीजन एट द राइट टाइम इन ऑल काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेड है, कहीं आपको रिवर्स लग रहा है तो क्या चीजें आपको ध्यान में देनी चाहिए, आइदर लोअर साइड से रिवर्स हो रहा है या हायर साइड से रिवर्स हो रहा है जब भी मार्केट, इंडेक्स या स्टॉक, तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोज एंट्री एंड एग्जिट, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका एंट्री एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मिस किया तो फिर आपको वो ट्रेड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पे ट्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो प्रीमियम है, प्रीमियम इज वेरी सेंसिटिव विद द अंडरलाइन प्राइस, और अगर आपका एंट्री एग्जिट सही टाइम पे नहीं है तो देन प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं। वहां पे जो प्रॉफिट बनना है वो प्रॉफिट के चांसेस वहां पे लो होते जाते हैं। सो ऑप्शन में हमेशा एंट्री एग्जिट आपका सही टाइम पे होना चाहिए।
एंड आपको हमेशा मार्केट में अटेंटिव रहना पड़ता है जब भी whenever you try to do intraday option trading. Over to you, Rahil. थैंक यू सर। सो गुड आफ्टरनून ऑल। जैसे सर ने बताया, हम विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्क्रीनिंग एक्सरसाइज, जहाँ पे हम ये स्लाइड पे जा रहेंगे। और बेसिक फिल्टरेशन है, जहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था कि स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, RSI शुड बी अबव 50। सो हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, वो हम देखेंगे। सो बेसिकली एक फीचर है अपना रिपोर्ट डिजाइनर, इसके अंदर वहाँ पे यू विल हैव टू जस्ट ऐड ऑन दिस पैरामीटर्स, आई विल शो यू लाइव आल्सो। और यहाँ पे यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि भाई मुझे ये रेट के ऊपर चाहिए, इतनी क्वांटिटी मिनिमम ट्रेडेड होनी चाहिए, और कौन सा सेगमेंट लेना चाहिए। सो डायरेक्टली गोइंग टू द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अपना एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट चार्ट टू रिपोर्ट डिजाइनर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है आपके लिए बेसिकली कि उसके अंदर कैसा होना चाहिए टू सेव द टाइम। तो हमने यहाँ पे डाली है एक क्वेरी, जिसके अंदर मैंने बेसिक लिया हुआ है क्लोजिंग प्राइस, एक एवरेज ली है 20 दिन की, और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का स्टॉक्स लिया हुआ है सेक्टर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल गेट अ ग्रुप। सो निफ्टी 50 इसलिए लिया है ताकि अपना टाइम थोड़ा सेव हो जाए स्क्रीनिंग के लिए। सो व्हेन वी क्लिक ऑन अ रन, वी विल गेट एग्जैक्टली द आउटले लाइक दिस, कि ये स्टॉक है बेसिकली, उसका क्लोजिंग प्राइस है एंड उसके बाजू में 20 डेज की मूविंग एवरेज है। एंड वेल क्लिकिंग ऑन द स्टॉक यू कैन डायरेक्टली, मतलब आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा चार्ट के ऊपर। सो आपको एक क्लियर कट फॉर्मेशन भी दिख जाएगी कि हाउ द कैंडलस्टिक्स आर प्लेस, हाउ द बेसिकली द मोमेंटम इज देयर। सो अगर आप हम देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो काफी दिनों से वो उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, एंड मल्टीपल अटेम्प्ट उन्होंने ट्राई की ऊपर जाने की, बट इट हैवंट गॉट सक्सेस। यहाँ पे एक अटेम्प्ट करी थी, सेकंड अटेम्प्ट वाज हियर, थर्ड अटेम्प्ट वाज हियर। अभी अब देखोगे तो आज जैसे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेंथ था, तो लास्ट 2 दिन से नीचे बॉटम से आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ है, क्योंकि आरएसआई अगर आप देखोगे तो नीचे से थोड़ी सी रिवर्सल बता रही है, बट स्टिल इट इज नियर टू दिस 20 डेज मूविंग एवरेज। तो ये एक अपने पास ऑप्शन है कि ये एक स्टॉक अपना रेडी हो गया स्क्रीनर और रडार पे, कि जब भी एक 20 दिन के ऊपर अपने को सस्टेन होती है जब आईसीआईसीआई बैंक की मूव पोजीशन, तो अपने को अलर्ट मिल जाएगा। अपने पास एक ऑप्शन भी है यहाँ पे कि यहाँ पे हम अलर्ट करके एक फीचर है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट द इक्विटी, यू हैव टू जस्ट टाइप द नेम ऑफ द स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप प्राइस डाल दो, प्राइस अलर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप प्राइस अलर्ट डाल दोगे 571 रुपीज विच इज 21 डेज, उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी ऐड कर दो, यू विल गेट एन पॉप अप। तो एक सिंपल स्क्रीनिंग, दिस इज द वे। दूसरा एक अपने स्पाइडर में बहुत ही अच्छा फीचर है, जहाँ पे अपने को ऑप्शन एक्टिविटी डायरेक्टली चार्ट पे दिख जाती है। सो आप जैसे सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे चार्ट सेटिंग्स में अपने पास ऑप्शंस है कि कहाँ पे अपने को दिखाना है करके, तो ये आप एक्टिव कर सकते हो चार्ट डिस्प्ले में जाके, कि वट एवर द फीचर्स आर देयर वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दी बॉक्स एंड इट विल गेट एक्टिव, ठीक है। तो जैसे अपने स्क्रीन पे डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि 580 के कॉल और पुट में ऑप्शन एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट बेसिकली इन ऑप्शंस, कि जहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक लेवल पे फाइट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू होल्ड द प्राइस लेवल। कॉल राइटर बोल रहे हैं मैं ऊपर जाने नहीं दूंगा, पुट राइटर बोल रहा है आई विल एनफोर्स द पुश अप टू टेक द प्राइस लेवल हायर। तो दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल एबल टू फाइंड इट आउट कि भाई डेली एक्टिविटी ट्रैक करोगे, एज सुन एज वी get the stock from the screener, we can check out the daily activity की call और put में क्या position built up हो रही है, and that is the another way which we will help us to identify that whether the stock will get a push towards higher level or it will again take a resistance and it will drop down. तो सेम वे वी कैन चेक इट विद दी 580 ऑप्शन एक्टिविटी भी हम यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट ओपन करके भी देख सकते हैं कि भाई क्या एक्टिविटी हो रही है। सो दिस इज डेली चार्ट, आइडेंटिकली इंट्राडे चार्ट में आपको ज्यादा थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप 580 के कॉल ऑप्शन दिखोगे मल्टीपल टाइम्स, यहाँ से प्राइस ड्रॉप होने के बाद स्टॉक बेसिकली ट्राई कर रहा है पुशअप करने की, क्योंकि इंट्राडे मोमेंटम इसमें जब जब आती है स्टॉक्स में तो वो अपने को एक पुश देगा कॉल और पुट के लिए। तो ये फ्यूचर की चार्ट है। तो जब भी उसने इंट्राडे में एक लेवल क्रॉस करी, दिस इज ए 20 डेज मूविंग एवरेज, तो फॉर इंट्राडे प्लेयर्स जब भी वो 20 दिन के ऊपर जाता है तो बेसिकली आइडेंटिकली वो एक दिन के लिए बुलिश थियरी हो जाती है, एंड यू कैन प्ले अ बुलिश ट्रेंड ओवर इट। तो अगर किसी को फ्यूचर प्ले डायरेक्टली करना है, दे कैन एग्जैक्टली
बाय द फ्यूचर्स, बट अगर किसी को ऑप्शन वाया ऑप्शन प्ले करना हो तो अभी बेसिक ट्रेंड जब वीक हो तो एट द मनी ऑप्शन अगर आप प्ले करोगे एंड ट्रेंड फेजल्स आउट तो एट द मनी की प्रीमियम जल्दी श्रिंक होगी, कंपैरेटिवली आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम कम श्रिंक होगी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कैन ट्रेड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बट नॉट द एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अभी यहाँ पे 550 560 जोन पे है, तो एटलीस्ट 570 या 580 मैक्सिमम एक आप स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर लो, 1 और 2 स्ट्राइक प्राइस, एंड यू कैन प्ले द ट्रेंड। तो अगर हम देखते हैं 2 दिन पहले अगर इसने यहाँ पे जब बुलिश इंडिकेशन दिया था तो एट दैट पॉइंट इन टाइम 560 स्ट्राइक प्राइस में कैसा मूवमेंट आया था। सो आइडेंटिकली इफ यू सी तो ये 560 का कॉल ऑप्शन है, जैसे उसने फ्यूचर्स में बाय आउट दिया, यहाँ पे भी आपको एक सेकंड इंडिकेशन मिल जाती है कि आरएसआई एकदम there was a fatigueness in the RSI which was showing there is no strength, but as soon as we saw price momentum picking up in the future on the day before closing, देखो RSI ने भी क्लियर कट बुलिश इंडिकेशन दिया, which identically means that कि ट्रेंड थोड़ा सा इन स्ट्रेंथ आ रहा है, स्टॉक में पुश आ सकती है मोमेंटम ऑन द हायर साइड। तो 560 के कॉल ऑप्शन में भी देखो यहाँ पे इफ यू आर सीइंग दिस ट्रेंड, तो आफ्टर दिस ब्रेकआउट अगर आप ये जोन पे अगर एंटर करते हो समवेयर अराउंड कीपिंग अ लो ऑफ दिस बुलिश कैंडल जो ये फॉर्मेशन हुआ था, तो यू विल गेट अ ट्रेंड इन एन इंट्राडे। और ये ट्रेंड आपका अभी भी इंटैक्ट है, ये ट्रेंड आपका कहीं जाके यहाँ पे रिवर्स हुआ। तो आइडेंटिकली फॉर अ इंट्राडे प्लेयर आपको बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे पोजीशन स्क्वायर करनी है, या फिर जब भी आपकी एग्जिट पोजीशन हो तो आपको एग्जिट पोजीशन कैसे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द एग्जिट पोजीशन। सो फॉर बाइंग यू इफ यू आर यूजिंग द मूविंग एवरेज एज अ कंफर्मेशन, you should use RSI as an exit strategy. So the logic behind is कि जो भी अपने को buying indication देगा, whether moving average or RSI, that will not give an immediate exit or the fastest exit. So identically we will have to use 2 parameters. अगर आप buying zone के लिए अगर moving average को use कर रहे हो, use RSI as an exit parameter. अगर आप RSI को buying zone की तरह use करते हो तो आप एक मूविंग एवरेज जो है उसका आप ट्रेलिंग सपोर्ट मेंटेन कर सकते हो, और व्हेनेवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ द मूविंग एवरेज यू शुड आइडेंटिकली एग्जिट द पोजीशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक फिल्टरेशन हो गया अपने रिपोर्ट डिजाइनर के लिए। अभी एक एग्जांपल है जहाँ पे लास्ट वीक में आया था HCL टेक। तो यहाँ पे अपने टेक्निकल एक बार स्क्रीनिंग कर लिया, एक पैटर्न बना ली, 20 डेज के ऊपर आइडेंटिकली एक स्टॉक ऑप्शन स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी देखा था कि भाई स्टॉक काफी देर से कंसोलिडेट हो रहा है ये रेंज में, और एज सून एज वी गॉट दी ब्रेकआउट तो उसके ये ब्रेकआउट आने पे क्या करना चाहिए। सो ब्रेकआउट अगर ओपनिंग में आ गया, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 1000 के कॉल ऑप्शन में था विच इज आइडेंटिकल इन द चार्ट आल्सो। ठीक है, तो काफी दिनों से ये ऑप्शन में कंटिन्यूस एडिशन हो रही थी, बट जब ये प्राइस ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे इसी दिन 1000 की कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग चालू हो गई। तो ये बेसिकली आपको कहाँ दिखेगा, आपको आइडेंटिकली ये NSE के ऑप्शन चेन में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको NSE का ऑप्शन चेन है वहां पे दिख जाएगा, बट ये अपना एक नया सॉफ्टवेयर आया है जो स्पाइडर का ही अपग्रेडेड वर्जन है, उसके अंदर आपको मैं वो बता दूंगा कि कहाँ पे दिखता है। वहां पे उन्होंने ऑप्शन चेन लाइव इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सो यहाँ पे ऑप्शन चेन मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 1000 पे था, एज सून एज इट क्रॉस 1000 लेवल्स 1000 के कॉल में अनवाइंडिंग चालू हुआ, तो 1000 बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर आप ATM स्ट्राइक पे प्ले करोगे बिकॉज इट इज आइडेंटिकली इंट्राडे चार्ट, और इंट्राडे प्लेयर्स कैन यूज एट द मनी ऑप्शन फॉर अ क्विकेस्ट एंट्री एंड एग्जिट। तो ये आपका है ऑप्शन चार्ट, 1000 का ऑप्शन का चार्ट। at the whenever when the breakout came at 916 at the opening, 1000 call was trading at 40 rupees and the day low was 36 rupees। ये अपना जो ब्रेकआउट है ये टाइम पे जब ब्रेकआउट आया 1000 का कॉल का 36 का लो था, और ये आपको जब यहाँ पे भी क्लियर कट ब्रेकआउट विजिबल है अराउंड 40 रुपीज। सो आपने क्या किया कि भाई मैंने 4 रुपीज का रिस्क लिया है, सो आइडेंटिकली इन ऑप्शन फॉर एन इंट्राडे 1:1 या 1:2 लेवल से आप प्ले करोगे। अगर 1:1 के लेवल से प्ले करते हो और इफ यू आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ चंक, तो आप 1:1 के अगर रेशियो से प्ले करते हो तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, सो आइडेंटिकली 4 रुपए का टारगेट होगा आपका। और अगर 1:2 का रेशियो है तो आप 8 रुपए का टारगेट रखोगे, राइट। तो अगर आपका 8 रुपए का टारगेट है तो आइडेंटिकली 48 रुपीज मतलब 8 रुपीज 40 के स्ट्राइक में आप ऐड कर दोगे तो 48 रुपीज आपका टारगेट होगा। HCL के कॉल ने 49.50 का उस दिन हाई बनाया, और आपको इजी एंट्री एंड एग्जिट मिल जाएगी व्हेनेवर यू डू सो। जैसे आज हमने देखा ग्लेनमार्क में कि अगर ग्लेनमार्क ने जब भी ब्रेकआउट दिया इन मॉर्निंग अराउंड
दिस लेवल 540 550 लेवल्स इंट्राडे चार्ट पे। आपने अगर 550 की कॉल प्ले करी हो, जैसे राजेश सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि वो होल्ड कर रहा था यहाँ पे 16 के लेवल बेस बना चुका था। अगर आपने ये बेस आइडेंटिफाई नहीं किया बट फिर भी आपने अगर मूविंग एवरेज पे अगर एंट्री करी हो विच इज अराउंड 20 रुपीज, इजिली 4 रुपीज का स्टॉप लॉस है, आइडेंटिकली 8 रुपीज, बट इट इज रोज मोर देन दैट, और आपको एग्जिट क्लियर कट मिल रही है यहाँ पे। तो ये आपका आइडेंटिकल लेवल है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न से आइडेंटिफाई करते हो एग्जिट, दैट इज वेल एंड गुड। अगर वहां से नहीं कर पाते हो, देयर इज एन सेकंड ऑप्शन आरएसआई, व्हिच इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि भाई आज का दिन का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेंथ लूज हो रही है, अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रेंथ गेन करी थी ऑप्शन ने, ऑप्शन मोमेंटम कंटिन्यू रहा फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उसने यहाँ पे क्लियर कट एक साइन दिया है कि भाई आज की मोमेंटम की जो स्ट्रेंथ थी वो मैं लूज कर रहा हूँ। तो फिर अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट करोगे, स्टिल यू हैव एन एम्पल ऑफ टाइम टू एग्जिट विच इज अराउंड एट 37 रुपीज। सो आपकी एंट्री अराउंड 20-21 रुपीज हुई थी ब्रेकआउट जोन पे, और आपकी एग्जिट हो रही है 37 रुपीज के करीब करीब। तो सेम वे आइडेंटिकली अगर आप स्कैन करोगे स्टॉक्स, तो अगर आज अगर आप इंट्राडे ट्रेड में आप स्कैन करते थे अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको एक बीपीसीएल मिल जाता जो ब्रेकआउट लेवल दे रहा था 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट। अगर आप 20 डेज मूविंग एवरेज दिखोगे तो येस्टरडे उसने ब्रेकडाउन दिया, पूरा दिन कंसोलिडेट किया, अटेम्प्ट किया एंड ऑफ द डे पे क्लोज करने के लिए, बट नहीं हो पाया। आज उसने अर्ली मॉर्निंग ट्रेड पे उसने ब्रेकआउट दे दिया विच इज अराउंड एट 408 410 लेवल, ठीक है। तो आप 410 एट द मनी की कॉल ऑप्शन इजीली आप कैच कर सकते हो। अगर आप आइडेंटिकली देखोगे डेली चार्ट पे, तो काफी दिनों से वो ये लेवल होल्ड कर रहा है। तो आपको नॉर्मल अगर आप चार्ट स्क्रीन भी करोगे तो यू कुड हैव आइडियली मेक आउट कि 400 का जो लेवल है वो होल्ड कर रहा है। अब ये होल्ड क्यों कर रहा है, देयर आर टू रीजंस। एक तो प्राइस एक्शन अपने को सजेस्ट कर रहा है कि वो 400 के नीचे नहीं जाता। सेकेंडली यहाँ पे एक पुट ऑप्शन है 400 का विच इज द हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। 19.18 लाख क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चार्ट ऑब्जर्व करते लास्ट 4 दिन 5 दिन से, तो यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। मुझे ये पता है बिकॉज आई हैव बीन स्क्रीनिंग इट आउट। तो यहाँ पे 400 का पुट ऑप्शन भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई स्टॉक में स्ट्रेंथ है, पुट राइटर्स आर वेरी इंटेक्ट, दे आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट 400 का सपोर्ट स्टॉक दे रहा है, काफी दिनों से ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब आज मोमेंटम 20 डेज का अपने को इंडिकेशन मिला इंट्राडे में, तो वी कुड हैव इजीली मेड इट आउट दैट 410 की कॉल हम इसको बाय करें, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है। तो सेम में अगर देखें बीपीसीएल की 410 की कॉल मॉर्निंग में क्या सिचुएशन थी ब्रेकआउट पे, आइडेंटिकली सेम ही होगा, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग एट दी मनी तो अंडरलाइन से ही सेम वो रेसिप्रोकेट होगा। जैसे अंडरलाइन की मूवमेंट होगी सेम वे ऑप्शन की मूवमेंट उसी तरह होगी, अनलेस यू आर नॉट बाइंग द फ्यूचर्स, बट यू आर आप जो फ्यूचर का लॉट साइज है वॉलेटिलिटी में आपको ऑप्शंस वो मिनिमाइज कर देगा इन केस ऑफ अनफेवर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब करीब आपको 10 रुपए के आजू बाजू ब्रेकआउट मिलती है। फर्स्ट कैंडल अगर आपको इंडिकेशन मिलता है, सेकंड कैंडल पे आप बाई कर रहे हो विच इज अराउंड 10 रुपीज। आप ये बेस जो लो है, ये जो कंसोलिडेशन है उसका आप स्टॉप लॉस मेंटेन करो विच इज अराउंड 8 रुपीज। तो 2 रुपीज का रिस्क है आपका, तो आइडियली द रिवॉर्ड वुड बी अराउंड 4 रुपीज। बट आइडेंटिकली जब ट्रेंडिंग स्टॉक था तो आपको रिवॉर्ड उसे भी ज्यादा मिला, करीब करीब आपको 4 टाइम्स रिवॉर्ड मिला। तो विच इज क्लियरली विजिबल। आपकी एग्जिट कहाँ पे होगी, आपको अभी एग्जिट कहाँ करनी है, आपको चार्ट देख के शायद पता नहीं चलेगा, बट एक आपके पास ऑप्शन है आरएसआई का, ठीक है। तो अगर एंट्री आपने मूविंग एवरेज पे करी है और कॉम्बिनेशन यूज करो आप आरएसआई का, यहाँ पे वो क्लियर कट बता रहा है, एग्जिट का एक फटिकनेस बता रहा है कि भाई मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे मेरी कम हो रही है। सेकेंडली अगर आप देखोगे वेन एवर द प्राइस वॉज राइजिंग द वॉल्यूम्स वर वेरी गुड, यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप डाउन भी होने लगा। तो आपकी एग्जिट अगर ये लेवल पे होती है तो विच इज करीब करीब 16 रुपए के आजू बाजू, 10 रुपए में एंट्री हुई, 16 रुपए के आजू बाजू एग्जिट हुई। अपने को हमेशा रॉक बॉटम या टॉप एंड नहीं मिलेगा, तो वो अपने को फाइंड नहीं करना है, बट ये दिस इज वन काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। इसको हम ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं बोलेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेड, जो बिकॉज देयर आर टू सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ ट्रेडर्स। एक है जो इन ट्रेंड हमेशा पकड़ता है, एक है जो हमेशा रिवर्सल पकड़ने की ट्राई करता है। रिवर्सल माने कि जहाँ पे वो बॉटम फॉर्मेशन हो रहा हो या टॉप फॉर्मेशन हो रहा हो। और इन ट्रेंड है जैसे कि आज जो भी ट्रेंडी इंट्राडे प्लेयर होगा, उन्होंने आज सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी फार्मा स्टॉक्स में ली होगी। आप कोई भी फार्मा स्टॉक्स देख लो, मे बी सन फार्मा, ठीक है, काफी दिनों से 20 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। इंट्राडे में यहाँ पे काफी येस्टरडे से वो होवरिंग हो रहा था, आज उसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया करीब करीब आपको 10:30 बजे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप यहाँ पे करीब करीब 640 का कॉल ऑप्शन देखो, यहाँ पे कॉल और पुट में दोनों मारामारी कर रहे हैं, बुल्स एंड बेयर्स आर ओवर हियर, देयर इज अ स्ट्रांग
biasness that bull will win or bear will win, ठीक है. बट ड्यूरिंग द इंट्राडे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी कॉल में अनवाइंडिंग होनी चालू हो गई थी. दैट वाज एक्चुअली विजिबल. आई विल ट्राई टू शोकेस इफ पॉसिबल. देखिए 640 की जो कॉल है यहाँ पे सन फार्मा की, वहां पे अनवाइंडिंग है, ठीक है. 574 लॉट्स है, आपको अनवाइंडिंग हुआ है. तो आप अगर ये चीज ब्रेकआउट पे देखते हैं, आप सामने कॉल पुट रखते हैं, तो अपने को क्लियर कट इंडिकेशन आ जाता कि देयर इज एन एडिशन इन 640 पुट ऑप्शन, which means the put writers are active. It is giving a support to the stock price. और 640 के कॉल में अनवाइंडिंग है. So which means the जो call writers है, they have understood that they the put writers are getting over them. They are trying to push the price up. So उनको forcefully unwind करनी पड़ेगी पोजीशन. And सेम वे अगर आप ये चीज देखते हैं तो आप 640 की कॉल अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं तो देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे. So करीब करीब आपको 14-15 रुपीज के आजू बाजू इंडिकेशन आया, तो आप आइदर ये कंसोलिडेशन का लो का स्टॉप लॉस रख दो या प्रीवियस बड़ी कैंडल का जो लो है वो आप स्टॉप लॉस रख दो एंड सी द रैली. एंड द टाइम यू गेट एग्जिट इज समवेयर अराउंड एट 20 रुपीज. सो आपका करीब करीब 14 रुपीज 15 रुपीज के आजू बाजू एंट्री पॉइंट हुआ with a stop loss of around 13 or 12 rupees, 12.5 rupees. So identically 1:2.5, 1:3 का रेशियो आपको मिलता है. It is as simple as that. But only thing is कि you will have to find the perfect entry. You have to scan the stock daily to identify कि भाई next दिन पे मुझे क्या करना है, ठीक है. और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं. दिस इज आइडेंटिकल एग्जांपल है कि वोल्टास. आइडियली आप देखोगे वोल्टास का एक ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है काफी दिनों से, ठीक है. बट स्टिल यहाँ पे देखोगे तो 950 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो स्टॉक करीब करीब यहाँ पे आपको सपोर्ट ले रहा है, ठीक है. जो इंट्राडे प्लेयर है, जो रिवर्सल प्ले करना चाहते हो, वो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं. इंट्राडे में काफी दिनों के बाद यहाँ पे एक बुलिश मूव आई है. यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक ने ट्राई भी करा ऊपर जाने के लिए, बट आरएसआई है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है. तो जब स्ट्रेंथ नहीं है तो स्टॉक की मूवमेंट ऊपर नहीं आएगी, ठीक है. तो अगर ये मूवमेंट पे देखोगे, जब उसने क्रॉसओवर दिया, आरएसआई बुलिश ट्रेंड बता रहा था. सो आइडेंटिकली स्ट्रेंथ बता रहा है. वॉल्यूम इज आल्सो राइजिंग. सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन व्हेन देयर इज अ राइज इन अ प्राइस अलोंग विद अ पॉसिबल ब्रेकआउट और ऑलरेडी ब्रेकआउट गिवन इन द आरएसआई एंड अ राइजिंग वॉल्यूम. ये तीनों कॉम्बिनेशन विल डेफिनेटली गिव यू अ बुलिश और अ क्लियर व्यू टू ट्रेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द वे यू वांट. अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो तो बुलिश व्यू है आपका, और आरएसआई ब्रेकअप दे रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये बुलिश व्यू फॉर्म होगा. सेम वे अगर जो करेक्टिव ट्रेडर होता है, जो हमेशा मंदी करना चाहता हो, मंदी जिसके मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग अ पॉजिटिव ट्रेड, उसको हमेशा कहीं पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं. तो फॉर देम अगर ये देखो कि यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया, आरएसआई ने ऑलरेडी यहाँ पे एक फटिकनेस बता दिया था कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, विच इज एन अर्ली इंडिकेशन. सेम वे स्टॉक जब 20 डेज के नीचे आ गया तो यहाँ पे 950 के पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकता था. सिमिलरली अगर जो बुलिश होता वो 950 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करता. ये 950 का पुट कॉल ऑप्शन है. आइडेंटिकली आपने यहाँ पे ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया विच इज अराउंड 32 रुपीज. स्टॉक स्टडीली मूव टू 40. तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिकली 2 रुपीज का है. 4 to 6 रुपीज आपका गेन है, विच इज 1:3. और आपको एग्जिट क्लियर कट आराम से एग्जिट मिलता है, विच इज अराउंड 38 रुपीज, ठीक है. सो आइडेंटिकली अगर जिसको रिवर्स प्ले करना हो तो 950 के पुट ऑप्शन में जिसने प्ले करा हो, जिसने 950 का पुट ऑप्शन, सेम स्टॉक, टू काइंड ऑफ एग्जांपल. अगर 950 का पुट ऑप्शन जब उसने साइन ऑफ, यहाँ पे जब हमने देखा था कि सेकंड हाफ में जब स्टॉक ने 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करी थी कैश लेवल पे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ 950 का पुट ऑप्शन गेन कर रहा है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है. सो ये जो जोन है वो आपका क्लियर कट ब्रेकआउट जोन है और यू कुड प्ले द ट्रेंड. बट सिंस यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन है, वो यहाँ पे वो आपके पास टाइम कम है, तो इंट्राडे प्ले आपको बहुत ही सोच समझ के करना हो कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लोजिंग है. तो इंट्राडे प्लेयर्स है तो आइडियली यू विल नॉट प्ले दिस ट्रेंड. नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखो कि स्टॉक की मोमेंटम क्या है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, एंड देन यू कैन अगेन प्ले द ट्रेंड. So this way there is a way to identify the trend in a particular stock, and same way you can convert it into the option.
अभी यहाँ पे अपने फीचर्स है, जहाँ पे सर ने क्लियर कट बताए थे कि अपने को अल्फा बीटा, सॉरी, डेल्टा बीटा गामा दिखता है और उसकी मूवमेंट कैसे अपने को करनी चाहिए। सो पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 14,600, ठीक है। तो अगर आप एट द मनी देखते हो, ठीक है, तो 14,600 की कॉल अब अगर आप जब भी एट द मनी देखोगे तो आपको क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि उसकी डेल्टा क्या थी। ये रही, ये 14,600 कॉल है जिसकी डेल्टा है 0.5। सो हमेशा एट द मनी की जो कॉल पुट होती है उनकी डेल्टा हमेशा 0.5 के करीब होती है। सो बिकॉज एट द मनी वो आइडेंटिकली अंडरलाइन से प्ले करते हैं, तो उनकी हमेशा डेल्टा 0.5 के नियरेस्ट होती है। और 0.5 की डेल्टा मीन्स 1 पॉइंट की मूव के साथ वो आपका 0.5%, 0.5 पैसा मूव करेगा। सो अगर 1 रुपये निफ्टी की मूवमेंट आई तो 50 पैसा एट द मनी की कॉल या पुट में मूवमेंट आएगी। अगर आप थोड़ा सा दूर जाते हो, विच इज सपोज वी से 14,800 कॉल ऑप्शन, विच इज 300, सॉरी 200 प्राइस स्ट्राइक अवे, फार अवे फ्रॉम द करंट प्राइस, तो अगर आप उसकी डेल्टा देखोगे विच इज 0.32, ठीक है। तो 0.32 माने कि अगर 1 रुपए की मूवमेंट है तो इसके अंदर 30 पैसा की आइडेंटिकल मूवमेंट आनी चाहिए। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेल्टा। So there are many other option Greeks, but identically to play an intraday या फिर शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए डेल्टा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डेल्टा कितनी है और कितना मोमेंटम आ सकता है फॉर अ पर्टिकुलर रेंज इफ यू आर प्लेइंग टू इट। देयर आर अनदर टाइप ऑफ ऑप्शन ग्रिड विच आर गामा। गामा बेसिकली क्या है, वो डेल्टा की जो स्पीड है वो मेजर करती है कि डेल्टा की कितनी स्पीड पे वो चेंज होगा। अगर फ्यूचर अंडरलाइंग प्राइस आपका एक्स अमाउंट से चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलर डेल्टा कितने परसेंट से चेंज होगा वो गामा डिसाइड करता है। थीटा इज बेसिकली द टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू माने कि अगर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है निफ्टी का, जैसे कि आज का दिन था, इफ यू हैव ऑब्जर्व क्लियरली, अगर आज का इंट्राडे आप देखते थे तो निफ्टी ने सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन, रादर एंड ऑफ द सेशन पे फॉल दिया। बाकी के टाइम पे उसने कंसोलिडेट किया एक छोटी सी रेंज में, विच वाज वेरी 14,650 14,690, ये कंसोलिडेशन रेंज था। तो इसी टाइम पे अगर एक्सपायरी का दिन होता, फॉर एन एग्जांपल टुडे इफ देयर वाज एन एक्सपायरी और निफ्टी यही रेंज पे कंसोलिडेट करता, उस दिन थीटा सबसे ज्यादा काम करता है। थीटा माने बेसिकली इट्स एन टाइम डीके, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन का टाइम कितना जल्दी डीके करेगा वो अपने को थीटा से पता चलता है। सो यहाँ पे अगर 14,500 की, समझो यहाँ पे 14,650 की कॉल किसने राइट करी थी और 14,650 की ऊपर अगर निफ्टी जा ही नहीं रही है, तो अपने अपने को थीटा से पता चलेगा कि हर लास्ट मोमेंट पे वो कितनी वैल्यू डीके करेगा, कितने टाइम में कितना ऑप्शन प्रीमियम इट विल ट्राई टू डीके। So that is basically in-depth analysis of option Greeks, और वेगा इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉलेटिलिटी कि भाई वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की वॉलेटिलिटी क्या है अगेंस्ट दी अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव, आइदर इट मे बी निफ्टी फॉर एन निफ्टी ऑप्शन और इट मे बी एन स्टॉक फॉर अ स्टॉक फ्यूचर फॉर एन स्टॉक ऑप्शन। तो टू कंक्लूड, ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है इसके अंदर कि अपने को एक ही विंडो पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन की ग्रिक्स क्या वैल्यू दे रही है अपने को, एंड उसका यूटिलाइजेशन भी पता चल जाएगा कि भाई डेल्टा है, अगर मूवमेंट समझो 50 पॉइंट की निफ्टी में आए तो इसमें अगर 0.5 का डेल्टा है तो वो 25 रुपए आराम से बढ़ेगी, देन यू कैन प्ले द ट्रेंड अपना। इसके अंदर और एक फीचर है which is डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। बेसिकली ये डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अपने को फ्यूचर्स के जो स्टॉक्स है वो डायरेक्टली मिल जाए कि भाई किसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और पर्टिकुलर स्टॉक फ्यूचर्स अपने को क्या इंडिकेशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल बेसिक इंडिकेशन है कि जो भी स्टॉक की प्राइस हमेशा ऊपर होती है विद एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट, जिसकी ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस डे से ऊपर है उसको हम लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं। तो अगर आप ये डेरिवेटिव रिपोर्ट्स में जाके डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे, आपको जस्ट यहाँ पे फर्स्ट माने कि करंट एक्सपायरी, सेकंड इज द नेक्स्ट एक्सपायरी एंड थर्ड इज द फार अवे एक्सपायरी। सो आइडेंटिकली वी विल टेक द फर्स्ट एक्सपायरी। यहाँ पे हमने फ्यूचर सिलेक्ट किया है, तो ये फ्यूचर के अंदर अपने को खाली फ्यूचर स्टॉक्स मिल जाएंगे और आप फिल्टरेशन में यहाँ पे प्राइस ओआई अप, प्राइस अप ओआई अप, तो लॉन्ग बिल्टअप अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, लाइव मार्केट में या एंड ऑफ द मार्केट में, तो आपको ये टाइप के अंदर मिल जाएगी। आपको अगर देखना है कौन से स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, तो हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं
तो विल आइडेंटिफाई शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। हम इसको टिक मार्क जस्ट फॉर रेफरेंस हटा देते हैं। बट अगर आज आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ सिंस यस्टरडे कोई भी स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप जाओगे लॉन्ग अनवाइंडिंग तो यहाँ पे अब लॉन्ग वाइंडिंग, अच्छा, एक बेसिक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो, इसको हम टिक मार्क नहीं करेंगे। अगर हम टिक मार्क कर देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी ऑफ द स्टॉक्स एक्सेप्ट दोज हु आर ओपन इज इक्वल टू लो। तो आज अगर टेक महिंद्रा देखेंगे तो उसका ओपन और लो सेम होगा। अगर आप देखोगे तो ओपन और लो सेम है, उसके लिए वो टिक मार्क में आया। अगर हम टिक मार्क निकाल देते हैं तो काफी सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, तो अपने को क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, कौन से शॉर्ट स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग प्ले करना है तो आपको ये दो टैब देखनी है, कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्टअप है और कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सो बेसिकली दोज हु वांट टू प्ले लॉन्ग दे विल हैव टू चेक अंडर दिस टू टैब्स। लॉन्ग बिल्टअप ये स्टॉक में हो रही है, ओके, अर्ली, और ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करना है आपको इन दी अर्ली मॉर्निंग ट्रेड, नॉट एट दी क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए जिसको बीटीएसटी करना है तो कर सकते हो। फिर ड्यूरिंग द टेन्योर, मतलब अर्ली मॉर्निंग स्कैनिंग आपका टाइम होगा 9:30 से 10:30 के बीच में। दिस विल हेल्प यू बेसिकली मोस्ट इफेक्टिवली ड्यूरिंग दोस टाइम, बिकॉज वहां पे क्या है कि स्टॉक्स की मूवमेंट काफी सारे चेंजेस होती है प्रायर डे क्लोजिंग से। सो दिट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि भाई प्रायर डे से स्टॉक अभी कौन सी दिशा में मूव करना चाहता हो, या अगर कल पॉजिटिव था बट अगर आज कुछ न्यूज आया हो तो न्यूज में शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, क्या है, तो वो पहले हाफ एन आवर 45 मिनट्स में अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे यू विल गेट एन एम्पल ऑफ टाइम टू पर्टिकुलरली ट्रेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। अगर आप मिडल में करते हो तो आपके पास जो इंट्राडे प्लेयर है उनके पास प्ले करने के लिए टाइम बहुत ही कम बचेगा, बिकॉज हाफ ऑफ द डे मस्ट बी आपका ऑलरेडी वेनिश हो चुका होगा। सो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप करते हो तो यू वुड हैव अर्ली मॉर्निंग आइडेंटिफाइड सपोज एपीएल, क्योंकि आज फार्मा चल रहा था और आपको अब यहाँ पे फार्मा का स्टॉक दिखा कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है इन दी अर्ली मॉर्निंग ट्रेड, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई और एक वे से कर सकते हो कि भाई ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी आपका चार्ट सेटअप तो ऑलरेडी है, 20 डेज मूविंग एवरेज है, तो आपने अगर वहां पे स्कैन नहीं किया और लॉन्ग बिल्टअप स्कैन किया है ये वाला ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट, तो यहाँ से भी आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि एपीएल लिमिटेड में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, प्राइस भी अपने सेटअप के हिसाब से ऊपर है, आरएसआई में भी स्ट्रेंथ है, यू कुड हैव इजीली प्लेड अ लॉन्ग ट्रेंड इनटू द स्टॉक। सेम वे अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे सीमेंस, ठीक है, तो अगर आप क्लियर कट है सीमेंस में अगर आपने स्कैन किया था, अगर किया होता एक दिन पहले, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक 20 डेज मूविंग एवरेज येस्टरडे इंट्राडे में ही उसने बाई सेटअप दे दिया होता, ठीक है। यहाँ पे बाई सेटअप दिख रहा है तो ऑलरेडी हम लॉन्ग होते, बट इनकेस अगर आपने प्रीवियस डे पे नहीं देखा और आज आज मॉर्निंग में अगर स्कैन किया है, तो अगर आपको यहाँ पे प्राइस ऊपर दिख रहा है और ओआई भी ऊपर दिख रहा है, तो अपने को एक ये स्कैनिंग के बाद ये ओपन होता है तो ऑलरेडी अपने को एक इंडिकेशन पहले ही मिल जाता है कि प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट 20 डेज मूविंग एवरेज विच इज बुलिश इन टर्म्स ऑफ सेटअप। तो आपको क्लियर कट लॉन्ग प्ले कर सकते थे आप अर्ली मॉर्निंग में अगर आइडेंटिफाई करते हो। सो ये डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट का भी एक फीचर अच्छा है। सेकेंडली मार्केट वाइड लिमिट, जिसके अंदर अपने को करंट ओपन इंटरेस्ट कितना है और करंट मार्केट वाइड लिमिट उसकी कितनी है, बैन में आएगा स्टॉक या पर्टिकुलरली बैन में नहीं आएगा, इससे मार्केट वाइड लिमिट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक अपना जो सॉफ्टवेयर है दिस इज एन ओल्ड सॉफ्टवेयर, अपने पास अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर आ गया है जिसके अंदर आपको ऑप्शन चेन हमने बेसिकली एनएससी पे जाके अपने को देखना पड़ता था एवरी टाइम, बट ये जो नया अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है इसके अंदर ऑप्शन चेन का जो ऑप्शन है वो अपने को इनबिल्ट दे दिया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में एनएससी डेरिवेटिव ऑप्शन चेन, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई निफ्टी। यहाँ पे अपने को स्ट्राइक रेंज डालनी है जो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है 13,500 और 15,500, ये और हमें रिफ्रेश करनी है, ठीक है। सो आपके सामने डायरेक्टली जो लाइव एनएससी की ऑप्शन चेन है वो यहाँ पे लाइव आपके सामने आ गई। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे हो, आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कंसोलिडेशन क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन चेन ओपन करो। तो आज का एक जो फीचर है यहाँ पे अगर आप देखोगे 14,700 के कॉल ऑप्शन में कंटिन्यूस एडिशन था,
तो अगर आपने मतलब ये जो फीचर्स थ्रू वी कुड हैव इजीली आइडेंटिफाइड 14700 कॉल ऑप्शन में कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है, 14800 में कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है, वाइल लोअर साइड पे 14500 पे ऑप्शन सॉरी 14450 14400 के पुट ऑप्शन में बिल्टअप हो रहा है। सो बेसिकली ये ऑप्शन चेन से हम एक रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द नियरेस्ट ट्रेडिंग रेंज। एग्जाम्पल यहाँ पे भी अपने पास ऑप्शन है ऑलरेडी कि चार्ट पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल 14500 इज द इमीडिएट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फॉर द करंट वीकली एक्सपायरी विच इज 21.6 लाख। सो आइडेंटिकली आपको यहाँ पे भी दिखेगा सेम वे 14500 ये नंबर ऑफ लॉट्स है। सो आइडेंटिकली इफ यू कन्वर्ट इनटू द क्वांटिटी एक्चुअल वैल्यू तो अपने को यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 75 विच इज द लॉट साइज, तो आपको एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं अर्ली मॉर्निंग में 14700 यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रहा था। सामने आपने ऑप्शन की एक्टिविटी देखी होती 14700 में कंटिन्यूस एडिशन है which would help us to identify that there is a strong resistance which we are getting during the course of the day which could have help us to identify that यहाँ पे अगर resistance ले रहा है तो for reversal जो trend reversal player है they could have easily identify this trend as a reversal and could have managed either to short nifty over here or either they could have bought put option। तो अगर यहाँ पे अगर ये रिवर्सल अगर अपने को ट्रेंड मिलता है इंडेक्स में, अगर फ्यूचर आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो यू कुड हैव इजीली मेड आउट 14700 एज अ कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सॉरी पुट ऑप्शन 14700 का चार्ट ओपन करते हैं। सो जहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस मिला अर्ली मॉर्निंग में एक आइडेंटिफिकेशन मिला था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। एक बार निफ्टी ने जो स्पाइक मारी थी, ये वाली जो स्पाइक है, ये जो स्पाइक है वो सेम स्पाइक आपको यहाँ पे नीचे दिखेगी ऑप्शन में। सो वो स्पाइक के बाद वो वहां पे करीब करीब ये लेवल पे बॉटम बना दिया एंड जैसे निफ्टी ने ड्रॉप डाउन दिया यहाँ पे अपने को एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस वहां पे नीचे आने की तैयारी कर चुकी है। तो वी कुड हैव इजीली आइडेंटिफाइड दिस 14700 पुट ऑप्शन टू गो अलोंग विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस बिग कैंडल अराउंड 140। वी कुड हैव इजीली एंटर द स्टॉक विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 130 लेवल्स जो ये कैंडल का लो है एंड वी कुड हैव इजीली डन द प्ले एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है टू फाइंड आउट द वे कि भाई ऑप्शन चेन में कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और वो एक्टिविटी में अपने को क्या इंटरप्रिटेशन मिल सकता है। सेकेंडली एक मैंने और एक चीज आइडेंटिफाई करके रखी है जो अपने इसमें ओपन इंटरेस्ट क्वेरी में है ये ऑप्शन विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट। अगर आप ये अर्ली मॉर्निंग में आइडेंटिफाई करते हो ये डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट अपने जो सॉफ्टवेयर है डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट क्वेरी रन करनी है। क्वेरी में जाना है अपने को NSE डेरिवेटिव OI क्वेरी, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को आइडेंटिकली मुझे निफ्टी ही ढूंढनी है बिकॉज आई वांट टू प्ले निफ्टी, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रखा है एब्सोल्यूट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विच इज 15%। तो कौन से ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में प्ले करना है वो अपने को यहाँ से एक रिवर्सल के तौर पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट रखा है 15% इन लास्ट 60 मिनट्स। तो लास्ट 1 घंटे में कौन से स्ट्राइक प्राइस में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 15% से ज्यादा चेंज हुआ है उसका अपने को एक लिस्ट आ जाएगा। दिस क्वेरी इज बेसिकली अवेलेबल ड्यूरिंग द इंट्राडे। तो ये पोस्ट मार्केट अपने को अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने उसका एक स्नैपशॉट लेके रखा है जो मैंने अर्ली मॉर्निंग एक स्कैन किया था, ठीक है। वो सीम्स क्वेरी है जहाँ पे मैंने नियर मंथ सिलेक्ट किया हुआ है, वहां पे मैंने कॉलर पुट ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट कि भाई कौन से कॉलर पुट में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये करीब करीब मैंने 10 बजे के आजू बाजू रन करी थी, ठीक है। तो वहां पे मैंने एब्सोल्यूट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 15% रखा है इन लास्ट 30 मिनट्स। तो मुझे ये पर्टिकुलर लिस्ट मिला था। होप दिस लिस्ट इज विजिबल, ठीक है। देखो यहाँ पे 14700 पुट में ओपन इंटरेस्ट 40% चेंज हुआ है और अब अगर ये सेम चीज आपको आइडेंटिकली चार्ट पे भी दिख जाएगा कि कैसे उसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये दो चीज है कि 14700 कॉल में आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है विच मीन्स वो रेजिस्टेंस ले रहा है। 14700 पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। 14700 के उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, पुट के उसमें। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। वहां पे 14700 के कॉल में एडिशन हो रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है। 14700 के पुट में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और यहाँ पे भी प्राइस में एक्शन नहीं आया, बट दिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग बिल्टअप व्हिच वी वुड हैव आइडेंटिफाइड इन द अर्ली मॉर्निंग। तो अगर जो ट्रेंड रिवर्सल प्लेयर है ये मॉर्निंग में अगर स्कैन करता है तो दे कुड आइडेंटिफाई
कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में अपने को काम करना है, दैट विल बी ऑन अ रडार ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ द डे। सो अगर ये स्ट्राइक प्राइस मैंने अर्ली मॉर्निंग में स्कैन करी तो यहाँ पे जब स्कैन करने के बाद 14,700 पुट ऑप्शन मैंने मेरे सामने रखा था, उसकी मैं एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था, सो आई वुड लाइक टू प्ले अ ट्रेंड रिवर्सल इन दी इंट्राडे। तो एट दी मनी वाले के लिए 14,700 पुट मैंने आइडेंटिफाई किया था। तो सेम चीज मैंने जो आपको बताई 14,700 पुट में कैसे हमने काम किया, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था अराउंड 159 रुपीज। ठीक है, उसके बाद उसने एक लो मारा क्योंकि अपने को इंडिकेशन तो अभी तक मिला नहीं था, एंड दिस इज अगेन 20 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे आरएसआई में भी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि स्ट्रेंथ है पुट के ऑप्शंस में, तो यहाँ पे भी फटिगनेस थोड़ी सी है, साइडवेज दिखा रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। बट एज सुन एज यहाँ पे अगर आपने देखा कि हल्का सा उसने नीचे कट दिया बट वो सस्टेन नहीं हुआ ज्यादा से ज्यादा, ये 5 मिनट के अंदर उसने तुरंत रिवर्स कर दिया, एंड हियर इट स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये अगर स्ट्राइक प्राइस हमने आपने आइडेंटिफाई कर ली, ये आपने एक्टिविटी कर ली, यहाँ पे एक रिवर्सल देख लिया, तो यू कुड हैव इजीली मैनेज दिस एट 140 लेवल्स। सो दिस इज ऑल्सो वन वे टू आइडेंटिफाई कि आपको रिवर्सल कैसे देखना है। और ये जो एनएससी डेरिवेटिव ओआई क्वेरी है वो एक्सपायरी के दिन बहुत ही बढ़िया काम में आती है। सो इन द लास्ट एक्सपायरी यू वी कुड हैव इजीली आइडेंटिफाइड। हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं लास्ट एक्सपायरी का 2 दिन पहले का। ठीक है, ये बैंक बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे अपने को क्लियर कट बता रहा था, दिस इज देन अपडेटेड चार्ट 32,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था इन दी लास्ट वीकली एक्सपायरी। तो ये 3300 जो दिख रहा है वहां पे वो 32,500 था। यहाँ पे क्लियर कट था, कंसोलिडेशन हो रहा था बैंक निफ्टी, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी नहीं था। सॉरी, दिस इज द चार्ट, ये तो आज का ये यस्टरडे का चार्ट है। तो ये यहाँ पे वो क्लियर कट कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे उसने ऑलरेडी बता दिया था कि आई एम लूजिंग द स्ट्रेंथ, और 32,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। So we could have easily those who want to play a short trend on a call option. So basically ये बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि ये अनलिमिटेड रिस्क कवर करता है, बट काफी सारे ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन राइट करते हैं। तो उन लोगों के लिए 32,500 वाज दी एग्जैक्ट ट्रेड जो yesterday के लिए काम में आता। So these are the ways which we can identify। तो बेसिक अपना यही है कि आप इंट्राडे में आप स्टॉक स्कैन कर लो, 20 डीएमए के ऊपर जैसे ब्रेकआउट मिलता है, आरएसआई 50 के ऊपर जाती है, अगर आपको स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है सेम वे उसका एट दी मनी का ऑप्शन ट्रेड कर लो, एंड दैट विल हेल्प यू इन अ क्विकेस्ट वे टू गो अहेड। सेम वे अगर एक लाइव एग्जांपल आज का ही देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में द लास्ट एग्जांपल व्हिच आई वुड लाइक टू शोकेस इज आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अगर आईसीआईसीआई बैंक आप देखोगे डेली में वीकनेस डेफिनेटली है, बट बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे तो उसने 2 दिन से मूवमेंट दिया था। आज इंट्राडे में उन्होंने, सॉरी डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट रिटेस्ट किया, यहाँ पे वापस उसने सपोर्ट रिटेस्ट किया। तो ये जोन पे आप क्या करते, 550 के कॉल ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो यू कुड हैव इजीली गॉट द मोमेंटम। So overall we have covered most of the examples। और एक राजेश सर ने बताया था कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कैसे प्ले करना है। फॉर एग्जांपल अगर एमएनएम है तो एमएनएम में 3 दिन से ट्रेंड बुलिश है, बिकॉज यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लिया है। इंट्राडे अगर आप स्कैन करते तो 2 दिन पहले आपको 20 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिलता, बट सिंस आपको पता नहीं है कि बेसिक ट्रेंड उसका करेक्टिव है, तो एट द मनी पे आप प्ले करो कि नहीं। अगर आप एट द मनी पे प्ले करते हो तो हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अगर अनफेवर में आपकी प्रीमियम ज्यादा श्रिंक होती। तो अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है 760 780 के जोन पे, और यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि 800 कॉल में तभी तो एडिशन थी, आज अनवाइंडिंग हुई है, बट 800 कॉल और पुट में हाईएस्ट एडिशन थी, तो आप 800 आउट ऑफ द मनी का अगर कॉल प्ले करते हैं 2 दिन पहले जब आपको क्लियर कट ब्रेकआउट इंडिकेट होता, तो आपकी आपकी सिनेरियो और प्रोबेबिलिटी क्या होती। 800 के कॉल ऑप्शन 2 दिन पहले करीब करीब 15 रुपए के आजू बाजू ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे उसने काफी टाइम एक कंसोलिडेट जोन किया था, ये ब्रेकआउट जोन हमने आइडेंटिफाई किया और इसी जोन पे हम बाई करते हैं, आपका ये स्टॉप लॉस इसका लो होता विच इज अराउंड 12 रुपीज। ठीक है, ये जो कैंडल है उसका लो है करीब करीब 10 से 12 रुपए, राइट। सो आप 15 रुपीज में बाय आउट करते हो 12 रुपीज विच इज 3 रुपीज, तो 1:2 के हिसाब से 6 रुपए आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। सो 15 और 6 तो आपका 21 रुपीज के करीब करीब होता है, आपको क्लियर कट उसे ही ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, और आपको यहाँ पे एग्जिट जो आ रहा है वो 25-26 रुपए के आजू बाजू आ रहा है अगर आप इंट्राडे प्ले कर रहे हो तो।
ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आउट ऑफ द मनी भी कर रहे हो क्योंकि स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गई इमीडिएटली, तो आपको प्ले इंट्राडे में मिल जाता है। बट यही चीज अगर आपको कैरी करनी हो एज एन पोजिशनल, जैसे सर ने बताया कि आपको पता नहीं है मोमेंटम क्या होगी, ब्रेकआउट आने के बाद उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया बट उसने 20 डेज मूविंग एवरेज से दूर नहीं गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड अगेन आज वापस उसने मोमेंटम दिया। तो अगर आपकी एग्जिट यहाँ पे होती है लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, अगेन दे कैन री एंटर ओवर हियर सेम स्टॉक, बिकॉज इंट्राडे में तो मोमेंटम उसने फेजल आउट किया बट डेली में मोमेंटम फेजल आउट नहीं किया था। और सेकेंडली आज डेली में उसने अगेन वापस 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया। सो विच इज अवर बेसिक सेटअप कि 20 डेज मूविंग एवरेज जब भी ब्रेकआउट देते हैं वी कैन गो लॉन्ग इनटू द स्टॉक। तो यहाँ पे आज वापस उसने ब्रेकआउट दिया, यू कुड अगेन हैव प्लेड दी लॉन्ग ट्रेंड और यहाँ पे अगर एंड ऑफ द डे पे एग्जिट दिया विच इज नियरली 825 रुपीज। ये फ्यूचर्स का चार्ट है, सेम आप 800 के चार्ट में देख सकते हो उसको, 800 के कॉल ऑप्शन में। यहाँ पे आप प्ले करो अगेन व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट, यू कुड हैव इजीली प्लेड द ट्रेंड। यहाँ पे आपको एग्जिट है राइट, so which is near around 40 रुपीज। so आप बाई बैक कर रहे हो अराउंड 27 रुपीज और आपका एग्जिट करीब करीब 40 रुपीज के आजू बाजू है राइट। so most of the things which I have wanted to showcast कर दिया है as per the new software। I feel this is the most important thing to be watched, derivative open interest query which is most workable in the expiry day, and it gives you clear indication on which strike price what kind of open interest change is happening, how much open interest there is a change compared to the previous day, and what could be the clear cut indication कि भाई मुझे 20 डेज के ऊपर ओपन इंटरेस्ट में भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड इफ दैट मूविंग एवरेज आई एम गेटिंग अ सपोर्ट एंड देयर इज अ ब्रेकआउट, यू शुड डेफिनेटली प्ले द ट्रेंड। सेम वे लास्ट स्टॉक अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस, अगर आप इंट्राडे भी देखोगे तो देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि वो 20 डेज के अदर इट इज होवरिंग नियर दी 20 डेज, and as soon as there is a breakdown in the 20 days average, you could have easily identified 4600 as a put option to play the trend for an intraday, and you could have easily made out your trade, those who want to play corrective trend। तो 4600 का पुट क्लियरली 20 डेज से होवर कर रहा है, यहाँ पे इजीली ब्रेकआउट आया, एक मोमेंटम आया, ये फेजल आउट हो गया एंड देन इट गिवन मोमेंटम इन द एंड अगेन। तो जब भी फेजल आउट हो बिकॉज ऑफ दी RSI there is an exit, but as soon as you want to play the same stock again and again, you can easily keep on re-entering the stock when there is a breakout, and the multiple the time you play, but there will always be a risk and reward involved, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंटर कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग एन एग्जिट एट अ पर्टिकुलर टाइम। समटाइम्स इट माइट हैपन कि आपका एग्जिट कॉस्ट के नीचे होगा, बट देन रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी मिनिमल टाइम ऑफ एंटरिंग ड्यूरिंग द। सो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा आपका कंपेयर करके ही चलो। अगर आप 1% का रिस्क ले रहे हो, दैट इज 2 रुपीज एग्जाम्पल, so ensure that whenever that 2 रुपीज का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, you make an exit, there is an exit sign। अगर यहाँ पे अगर आप एग्जिट करते हो तो it is almost your exit near the cost। अगर आप 120-25 में ले रहे हो, आपकी एग्जिट 120-25 के पास ही हो रही है, so you will be exiting at least near to the cost or at the cost। so in options there is always a rule ki play with a stop loss, play with a trend। once the trend fizzle out, don't get biased towards the trend, make those opportunity to exit so that your capital stay intact, and whenever there is again a breakout in a particular same option, you could again play the same thing। तो ये 3 दिन से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस वो वही पैटर्न बना रहा है, देयर इज ऑलवेज अ फेजल आउट, दिस इज अ साइडवेज कंसोलिडेशन आइडेंटिकली। तो ये आपको क्लियर कट ब्रेकआउट आज ही जब उसने एग्जैक्टली स्ट्रेंथ बताया विद वॉल्यूम्स। सो आइडेंटिकली द ब्रेकआउट इज एट द एंड ऑफ द डे, और उसके पहले भी जितने भी मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट आए थे, बट दोस ब्रेकआउट हैज एक्टेड एज अ फेलियर। यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया था एंड देन उसका जो ब्रेकडाउन आया विच इज अगेन नियर टू द कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई स्टॉक की पैटर्न क्या है और ये इसके अंदर क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दिस स्टॉक इज हाई बीटा स्टॉक। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स में हमेशा देयर इज मच ऑफ दी वॉलेटिलिटी। जो लो बीटा है वो स्लो रिटर्न्स देगा, स्लो मूवमेंट देगा, बट हाई बीटा स्टॉक देयर इज ऑलवेज a higher case of momentum in either side, on the upper side or in the lower side। even Maruti is known as a high beta stock, तो उसकी volatility आप देखो। so this kind of stocks will definitely you will have to enter at a precision time and keep a tight stop loss so that the capital is survived at the end of the day। that's it, operator, moderator।
Avinash? Yes, thank you, Rahil bhai. Okay. So I have tried to cover most of the Yes, derivative you have done. part. Yeah, thanks. It's a great session for us actually, and it's a very informative for each and every clients also. So it's a great. Thank you, Rajesh sir. Thank you, Rahil bhai.